Subha Sandhya. Ladies and gentlemen, I'm Unman Singh, your host for this cultural evening. Welcome you all to an enchanting evening of Santur recital by the eminent Santur maestro Pandit Abhay Sapori, presented by the Indian Council of Cultural Relations ICCR. सभी प्रवासी भारतीयों और उपस्थित सुधीजनों का आज की शुरमई संध्या में हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिन से हम सब भारतवंशी और भारतवासी अपना खून का रिश्ता और दिल का रिश्ता का उत्सव मना रहे हैं। इस दिल के रिश्ते की धड़कन है हमारी सांझी संस्कृति का समृद्ध विरासत। The heart and soul of the Pravasi Bharatiya Divas is our Bharatiyata, our sense of belonging to one family, one shared heritage. This evening, we present a melodious slice of our belongingness, a captivating recital by one of India's outstanding musicians, a maestro of Santur and a representative of the 300-year-old Sapori Sufiana Gharana of Kashmir, the Santur maestro and music composer Pandit Abhay Rustam Sapori. Can we expect a big round of applause from all of you? कल दोपहर के भोजन पर श्री सपोरी के संतूर के सुरों का झलक हम सब ने देखा, बहुत आनंदित भी हुए। आज हम उनके मधुर सुरों का भरपूर आनंद फिर से उठाएंगे। So ladies and gentlemen, I am honored to invite with a big round of applause from all of you, Pandit Abhay Sapori and his accompanists to present their melodious Santur recital. Today, he will be accompanied by Ustad Akram Khan, tabla, Shri Ankit Parekh, pakhwaj, Shri Chanchal Singh, percussions, Shri Varun Rajsekharan, ghatam, Srimati Ragini Rainu, tanpura, and Shri Divyan Srivastav, सुर संतूर। आपके और इन्हीं कलाकारों के बीच में अब मैं विदा ले रही हूं। Ladies and gentlemen, ICCR proudly presents Santur maestro and music composer Pandit Abhay Rustam Sapori and his group of talented musicians, and of course they deserve a thundering round of applause from all of you. Thank you. Over to you, Pandit ji. Namaskar and very good evening. Honorable Minister Shri Kirtivardhan ji and all the esteemed members here. Before I take the permission of starting the recital, I'm sure you have had a wonderful 18th convention till now as we move towards the concluding part of the 3-day celebration. I've selected a raga which I created last year only. It's called Rag Bhagwati. I'm sure you'll enjoy, so with the permission of all.
We always say the vocal and the instrumental should be together. Please sing with me if you really like. Please sing a couple of lines with me. Ni, 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 sa. Little louder, please, so that I can hear you. Ni, ni, sa. Ni, ga, sa. Sa, ga, ma. Ga, ga, ma. Little louder. Ga, ma, pa. Ma, ga. Ni, ga, sa. Little variations. Ni, sa, ga, ma, pa, ga, ma, ga. Da, ma, pa, da, ma, pa, ga. Ni, ma, ga. Ga, ma, pa, ga, ma, pa, da, ma, pa, ga. Ni, ma. Sa, ga, ma, pa, da, ni, pa, ga, ma, pa, ni, ga, sa.
brief composition. So it's a bandish that I have written in praise of Ma Durga, so presenting that. हे माँ तू है भवानी, हे माँ तू है भवानी, हे माँ तू है भवानी, हे माँ, हे माँ तू है भवानी, दुर्गा तू दुर्गति नाशनी, हे माँ तू है भवानी, हे माँ। जगत जननी सती साध्वी महालक्ष्मी सरस्वती काली कृपा करो हे भगवती दास करे पुकार, हे माँ तू है भवानी।
Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अभय रुस्तम सपोरी जी और उनके साथी कलाकार। एक बार जोरदार ताली की फिर से उम्मीद करूंगी आप सभी से। We are indebted that in this incredible stage you have performed so well. It has touched our hearts. I hope all of you have liked it. Thank you so much. Ladies and gentlemen, महाकुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का सबसे भव्य और पवित्र आयोजन है। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के समृद्ध इतिहास, आस्था और एकता का प्रतीक है। चलिए एक दृश्य चित्र के माध्यम से महाकुंभ मेला के बारे में और थोड़ा जानते हैं। कैन वी प्ले द वीडियो कंसोल? भगवान श्री ब्रह्मा की यज्ञ, भगवान श्री ब्रह्मा की यज्ञ भूमि प्रयाग, सृष्टि के प्रथम यज्ञ की साक्षी मां गंगा यमुना सरस्वती की संगम स्थली प्रयाग, पवित्र नदियों का प्रवाह, अनेकानेक तीर्थों का महत्व, उनके योग संयोग प्रभाव और प्रताप का केंद्र है तीर्थराज प्रयाग। अपने कण कण में प्राचीन धरोहरों और परंपराओं को समेटे संगम नगरी के पौराणिक मंदिर और पुरातन घाट कराते हैं दिव्य अनुभूति। यह पुण्य भूमि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज 2025 की बनने जा रही है साक्षी। आप भी आइए प्रयागराज और करिए अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर सहित 11 कॉरिडोर के दिव्य दर्शन, सरस्वती कूप, पातालपुरी, नाग वासुकी और प्रयागराज के नगर देवता द्वादश माधव मंदिर सहित 29 प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प के बनिए साक्षी। प्रयागराज के पुरातन घाटों का सौंदर्यीकरण, नए रिवर फ्रंट रोड और विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर में आस्था और विश्वास के अनेकों रंग का अनुभव करने आइए प्रयागराज, जहां जीवित है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, तो साथ ही यात्री सुविधाओं का है विराट संगम, जहां होगा सिद्ध संतों का समागम। उन सच्चे चरणों को स्पर्श करने आओ चलें तीर्थराज प्रयाग। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप सभी को प्रवासी भारतीय दिवस के इस महामंच पे आमंत्रित करने, इस महा आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फिनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना जी का मंच पे स्वागत करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत करते हैं। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में आयोजित होता है, ऐसा विश्वास है कि इस मेला में हिस्सा लेने से और इन नदियों में डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप का विनाश होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी हमें एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका महत्व बताएंगे और मैं आशा करती हूँ कि हम में से बहुत कोई इस महाआयोजन का हिस्सा बनेंगे। We welcome on stage Finance and Parliamentary Affairs Minister, Government of Uttar Pradesh, Shri Suresh Khanna ji.
अच्छा ये पोडियम नहीं, पोडियम नहीं है सर। तो नहीं है? मैं पकड़ लूँ क्या पेपर आपके लिए? नहीं चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, हमारे ओडिशा सरकार के मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण तथा देश और दुनिया के पधारे हुए समस्त महानुभाव, आज इस मंच से हम आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी मंच से प्रोनाउंस किया गया कि प्रयागराज संगम की नगरी, जिसमें 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हर 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 2019 में कुंभ का आयोजन किया गया था। एक ऐसा मेला, एक ऐसा समागम जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में अमृत कलश में खास तौर से जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 4 स्थानों पर उसकी बूंदें गिरी। ऐसा कथाओं का सार है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों की संगम है, इसलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा है। 2019 में लगभग 2019 में 24 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा समागम है। 2017 में यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की संज्ञा दी थी। यह हमारे लिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है। जहां यहां पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, हर प्रकार की एक सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश की गई है। हर प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी दिव्यता और भव्यता के साथ ये आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी कुछ अपने आप में सिक्योर्ड रहे, क्योंकि सुरक्षा हमारी पहली आवश्यकता है। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके ऊपर पूरी मानवता गर्व करती है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और हर प्रकार से ये कोशिश की गई है कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जितने श्रद्धालु हैं, वहां पर जो आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वहां संपूर्ण प्रकार से सफाई की व्यवस्था की गई है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर वहां पर बनाया गया है और लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि पर पूरे मेले का क्षेत्रफल लगभग 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर क्षेत्र में 25 सेक्टर में इसको बांटा गया है। पूर्ण रूप से
ये कोशिश की गई है कि पार्किंग का एरिया 1850 हेक्टेयर और 6 स्नान कुल आयोजित किए गए हैं। 13 जनवरी को प्रारंभ होगा, 14 जनवरी मकर संक्रांति को विशेष नहान है, उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का विशेष स्नान आयोजित किया गया है, जिसमें पिछले 2019 में 3-4 करोड़ लोग आए थे। इस बार उम्मीद है कि 4-5 करोड़ लोग आएंगे। इसके साथ ही जो लगभग 400 किलोमीटर की इंटरनल रोड्स बनाई गई हैं, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स 67,000, टॉयलेट्स की विशेष व्यवस्था की गई है 1,45,000 और मेला टेंट में 1,75,000 टेंट्स की व्यवस्था भी की गई है। पब्लिक एकोमोडेशन के लिए भी 25,000 लोगों की विशेष व्यवस्था की गई है। सफाई की विशेष रूप से व्यवस्था के लिए 10,000 स्वीपर्स को 24 घंटे के लिए व्यवस्था की गई है कि 10,000 लोग लगातार कुंभ के क्षेत्र में सफाई 24 घंटे करें। इसके साथ ही रोड्स और ब्रिजेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। एयर कनेक्टिविटी भी उसके साथ ही है। प्रयागराज का एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया गया है। हर प्रकार से इस बात की कोशिश की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को आने में, आवागमन में या वहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। ये 84 खंबे ये भी अपने आप में एक आस्था का केंद्र हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 51,000 पुलिसमैन, पर्सनल गार्ड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास 2750 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति पर कैमरे की नजर रहे और कंट्रोल रूम से डायरेक्ट इसका कनेक्शन है, ताकि किसी भी स्थिति में हम उसको क्विक रिस्पांस कर सकें। 7 लेयर्स सिक्योरिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। ये 7 लेयर्स खास तौर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रयागराज जनपद के सीमावर्ती जनपद प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था, सुरक्षा चक्र द्वितीय, जनपद के सीमा पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र तृतीय, शहर के संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र चतुर्थ, कुंभ क्षेत्र के निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में चेकिंग, सुरक्षा चक्र पंचम, मेला क्षेत्र आउटर कार्डन, सुरक्षा चक्र षष्टम, मेला क्षेत्र इनर कार्डन पर चेकिंग, सुरक्षा चक्र सप्तम, मेला क्षेत्र आइसोलेशन कार्डन। ये 7 लेयर्स सिक्योरिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। मैं समझता हूं कि लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन से योगी जी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, रूल ऑफ लॉ उनकी प्रायोरिटी है और डेवलपमेंट उनका एजेंडा है। आज रूल ऑफ लॉ और डेवलपमेंट के कारण उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश को एक सेफ और सेकंड डेस्टिनेशन माना जाता है। जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिस्पांस, कोशिश की गई है कि हर प्रकार से वहां पर लोगों को हेल्थ कॉशियस भी है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए के लागत से ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और 100 बेड का अस्पताल 24 घंटे रन करेगा और खास तौर से इसमें नेत्र कुंभ के रूप में लगभग 50,000 आंख के ऑपरेशन की व्यवस्था भी की गई और उन लोगों की नेत्र चेकिंग के लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई। जहां तक सैनिटेशन का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया कि
टेम्पररी टॉयलेट्स 1,50,000 और इसके अलावा 500 परमानेंट टॉयलेट्स की व्यवस्था है और इनकी सफाई की 24 घंटे की व्यवस्था परमानेंट की गई है। तो एक साफ सुथरा स्वच्छ कुंभ देने का प्रयास किया गया है। जहां तक लाइटिंग का सवाल है, 67,000 एलईडी लाइट से पूरा क्षेत्र जगमगाएगा और 84 पावर स्टेशंस, सब स्टेशंस भी मेला क्षेत्र में एस्टेब्लिश किए गए हैं। जहां तक घाटों की व्यवस्था है, वर्तमान में 44 घाट हैं। पिछले बार 2019 में 19 घाट थे, 2019 में 35 घाट थे। इस बार 9 घाटों का नया निर्माण किया गया है, इसलिए कुल 44 घाट पर है ताकि किसी भी श्रद्धालु को स्नान करने में कोई असुविधा न हो। ये प्रयागराज में जो विशेष आकर्षण है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि वहां पर हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, अक्षय वट और खास तौर से ये वहां पर जो दर्शनीय स्थल है उसको भी सजाया और संवारा गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से एक ब्यूटिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड्स कनेक्टिविटी के बारे में विशेष रूप से चिंता की गई है और इसकी पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट पर है और कुंभ के वेब पर भी है, उपलब्ध है। एक नंबर प्रयागराज मेला अथॉरिटी का मैं विशेष रूप से आप लोगों को देना चाहता हूं। ये अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट प्रयागराज मेला अथॉरिटी +91 532 जो एसटीडी कोड नंबर है 25000775, इस पर विशेष रूप से जानकारी मिल सकती है। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, बड़ा हनुमान जी का टेम्पल, मां ललिता देवी का मंदिर, शंकर विमाना मंडपम एंड साइमल्टेनियसली जो मैंने अभी बताया आपको कि भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर और अक्षय वट, ये कुछ विशेष आकर्षण हैं जो श्रद्धालुओं के लिए सदैव दर्शनार्थ इनकी व्यवस्था रहेगी। एकोमोडेशन और ऑप्शंस हैं महाकुंभ के लिए, जो हमारे आगंतुकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। 25,000 लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था है जो जनरल है, और इसके अलावा 2,000 से लेकर और 5,000 10,000 टेंट्स, लगभग 23,000 टेंट्स लगे हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, 2,000 से 5,000 रुपए वाले, 5,000 से 10,000 रुपए वाले तथा 10,000 से 20,000 रुपए वाले पर नाइट के। इसमें यूपी टूरिज्म के माध्यम से इसकी बुकिंग भी संभव है। ये व्यवस्था है IRCTC के माध्यम से व्यवस्था हो सकती है, और होटल्स की भी 150 होटल्स अवेलेबल हैं प्रयागराज में। ये कुछ जानकारियां थी जो मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। आज उत्तर प्रदेश एक अत्यंत प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में विकसित हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। हम आज आपको आमंत्रित करने आए हैं इस कुंभ मेले के लिए। ये एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है कि जिसमें पर्वों के ऊपर स्नान का विशेष महत्व है, जिसमें न केवल डुबकी लगाने से स्वच्छता और मन को शुद्धता मिलती है, बल्कि कहा यह जाता है कि मोक्ष प्राप्ति का मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा मार्ग है। और हम सबको आज विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय आए हैं उन पर भी हम गर्व करते हैं कि उन्होंने हमारे
देश का नाम विभिन्न स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए अपना एक स्थान बनाया है और हर तरह से हमारे देश को विदेशी मुद्रा भी भेजते हैं, जिसकी हमें बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। हम सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आयोजकों को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया। आज हमारे आदरणीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं और भी हमारे कई मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों का स्वागत करते हुए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोग आइए, कुंभ में स्नान भी करिए और पुण्य कमाइए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मंच पे बने रहें। यकीनन महाकुंभ मेला हमारे लिए एक मेला नहीं बल्कि आत्मा से परमात्मा के साथ मिलन की स्थली है। और मैं बताना चाहूंगी कि सारी सुविधा के बारे में, सारे सुरक्षा के बारे में, सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमें अवगत कराने के लिए माननीय मंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ पल पहले पंडित अभय रुस्तम सपोरी जी मंच पे बहुत सुंदर संतूर की धुन से हमें मोहित किए। सो मैं उनको और उनकी पूरी टीम को फिर से मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार करतालियों के साथ। पंडित जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर से संतूर की धुन आज यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस के मंच पे हमें सुनने का मौका मिला, इसलिए हम आईसीसीआर का भी बहुत बहुत शुक्रिया फरमाते हैं। अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का। स्वागत करते हैं और मैं आदरपूर्वक बुलाना चाहूंगी मंच पे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। जोरदार तालियों के बीच हम अतिथियों का भव्य स्वागत करते हैं मंच पे। पूरी टीम से मैं अनुरोध करूंगी थोड़ा आगे आ जाए और मैं अनुरोध करूंगी डायरेक्टर जनरल आईसीसीआर के नंदिनी सिंगला मैम अतिथियों के साथ मंच पे योगदान करें। पंडित अभय जी और पूरी टीम स्टेज के सेंटर में आ जाएं, थोड़ा स्टेज के सेंटर में आ जाए। मंत्री जी हमारे साथ योगदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी और डीजी आईसीसीआर हमारे बीच में आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और एक पुष्पगुच्छ के साथ हम आपका सम्मान करना चाहेंगे मंच पे और हमारे दर्शकों की तालियों के साथ। पहले अतिथियों का हम स्वागत करते हैं मंच पे। माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा श्री मोहन चरण मांझी जी, माननीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी और डीजी आईसीसीआर के नंदिनी सिंगला मैम। मैं सीएम सर से अनुरोध करूंगी पंडित अभय रुस्तम सपोरी का मान बढ़ाए मंच पे पुष्पगुच्छ के साथ। एक ग्रुप फोटो के लिए मैं अनुरोध करूंगी अतिथियों से और पंडित जी और उनकी पूरी टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी। हमें महाकुंभ मेला के बारे में विस्तार से अवगत कराने के लिए सारे प्रवासी भारतीयों को इस महामंच पे आमंत्रित करने के लिए, महाकुंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे अतिथियों का, कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया।
सारे दर्शकों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। और आज इसी के साथ इस कल्चरल प्रोग्राम के साथ आप सभी ने कुछ देर पहले वैलेडिक्टरी सेरेमनी आप लोग विटनेस किए, बहुत सारे प्लेनरी सेशंस हुआ और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इनाग्रल सेशन में अपनी गरिमा में उपस्थिति देके कार्यक्रम का मान बढ़ाया। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का सही योगदान की अपेक्षा में ये कार्यक्रम को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अनुरोध है जाने से पहले सारे एक्सपीरियंशियल सेंटर, सारे एग्जीबिशंस और हर एक कॉर्नर को आप देखिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ऑल द ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज एंड सर्वोपरि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आप सभी के साथ के लिए, आप सभी के योगदान के लिए अंतर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जताते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि ये कार्यक्रम तो यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन ये जो बंधन, ये जो रिश्ता हम यहाँ पे जोड़ के जा रहे हैं, ये रिश्ता, ये बंधन हमें प्रगति की ओर ले जाएगा, हमें नई मार्गदर्शन देगा और 2025 से एक नई शुरुआत के साथ यहाँ पे कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ।